انڈیپینڈنٹ اردو کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں سہرش قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کے لیے. دنیا کے کئی ممالک میں انفلوئنزا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں صورتحال کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ دراصل انفلوئنزا ہے کیا؟ اچھا، پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. انفلوئنزا ایک گلوبل پینڈیمک کی صورت میں آتا ہے. اسی طرح جس طرح مختلف بر اعظم کانٹیننٹس میں پھیلتا ہے. تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. نارتھ میں اس کی جو سیزنالٹی ہے وہ نومبر سے، یعنی جن مہینوں میں پھیلتا ہے وہ نومبر سے اپریل تک ہے. ساؤتھ میں اسی طرح مارچ اپریل سے سپٹمبر تک ہے، اور ٹراپیکل سیزن میں لگاتار پھیلتا ہے. پاکستان میں جس طرح سردیاں کا موسم آتا ہے تو ہمارا بھی سیزنالٹی، ہمارا بھی موسم انفلوئنزا کا یہی ہے. پوری دنیا میں تقریباً 3 سے 5 ملین لوگ انفلوئنزا سے افیکٹ ہوتے ہیں، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور یہ سارا خطہ شامل ہے، اور تقریباً 3 سے 6 لاکھ ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں. پاکستان میں آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان میں انفلوئنزا جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف سیزنز میں بھی پھیلتا ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے خاص طور پہ جو ہائی رسک پاپولیشن ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، حاملہ خواتین ہیں، یہ تمام کی تمام ہائی رسک پاپولیشن ہے، یا کوئی اگر کسی کو خاص بیماری ہے ان میں زیادہ پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہماری ہائیجینک کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان میں یہ انفلوئنزا بہت تیزی سے پھیلتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جنرل پبلک کے لیے کہ بیسکلی انفلوئنزا ہوتا کیا ہے، کہاں کس کو جانا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. انفلوئنزا ایک ایسا مرض ہے جو وائرس کاز کرتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ کئی صدیوں سے ایگزسٹ کرتا ہے. آپ نے بڑا مشہور اسپینش فلو کا نام سنا ہوگا، جس سے کئی ملین ڈیتھس ہوئی تھیں دنیا میں. یہ اسی کی ہی آگے کی ایک فارم ہے وائرس کی جو کہ پھیلتی ہے. اور انفلوئنزا کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیکن اے اور بی ٹائپ جو ہے اس کی زیادہ خاص انفلوئنزا کاز کرتی ہے، اور اسی ٹائپ کے اگینسٹ ویکسین بھی بنائی جاتی ہے. چونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو اس واسطے اس کے لیے اینٹی بایوٹکس یا اور کوئی دوا کام نہیں آتی. اب اس کی کچھ علامتوں کا میں بتا دیتا ہوں. اس میں گلے میں خراش ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے، جو پھیپڑوں کا اوپر کا حصہ ہے جن کو ہم ریسپریٹری ٹریکٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کا انفیکشن ہوتا ہے، اور ناک گلے منہ سے پانی بھی آتا ہے. اچھا، اور شدید اس میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. اچھا، اب اس میں جو کمزوری ہے وہ چونکہ یہ وائرس ہے، اس کی ایک سائیکل ہے. یہ 7 8 10 دن تک یہ وائرس آپ کے جسم میں رہتا ہے، اور 10 دن تک؟ جی، 7 دن تک نارملی 7 دن تک، لیکن 10 دن تک بھی رہ سکتا ہے. اور نارملی 7 دن بعد یہ خود بخود یہ بیماری چونکہ سیلف لمیٹنگ ہے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس 7 دنوں میں کافی مریض کا مشکل میں ڈال سکتا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ پاکستان میں آج کل اس طریقے کے کیسز کافی زیادہ سامنے آ رہے ہیں، تو کیا سیویرٹی اتنی زیادہ ہے، یا صرف لگ رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ سیویر اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں چونکہ اور بیماریاں بھی بہت ہیں، اور ہماری ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم لوگ حفظان صحت کے اصولوں کو قریب نہیں رکھتے، ہاتھ نہیں دھوتے، فالو نہیں کرتے. ہمیں کھانسنے کا، چھینکنے کے پراپر طریقے نہیں اپناتے. ہم یہ چونکہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، یہ کھانسنے سے چھینکنے سے پھیلتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہمیں حفظان صحت کے اصول بتاتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پہ کسی کو نزلہ ہے، وہ ٹیشو پیپر کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو ہم پراپر ڈسپوز آف کریں. اور اگر ہم نے کسی انفلوئنزا والے شخص نے جس کو فلو ہے وہ ناک کو ہاتھ لگایا، اور وہی ہاتھ وہ دروازے کے اس کو لگا لیتا ہے، جو اگلا آدمی اس دروازے کے ہینڈل کو لگائے گا تو اس کو انفلوئنزا، اس طرح کی بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، ان وجوہات کی وجہ سے اس ملک میں انفلوئنزا پھیلنے کے چانس. پھر ہمارے رورل ایریاز میں لوگ ایک ہی کمرے میں بے تحاشا رہتے ہیں. اچھا، بائی دی وے، یہ انسانوں کی بیماری کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بیماری بھی ہے. جانوروں میں بھی نزلہ زکام، جی، برڈ فلو کا آپ نے بالکل صحیح فرمایا.
जानवरों में भी होता है और वो भी इंसान को लग सकता है और वायरस जो है अपनी शक्ल तब्दील करता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि अगर ये हो गया है तो उसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में? जी, इसका फकत इलाज वैक्सीन है, लेकिन वो होने के बाद नहीं, वो होने से पहले। जी, वैक्सीन का जो बुनियादी जो मकसद होता है वो ये कि कोई बीमारी होने से पहले दी जाए ताकि बीमारी को रोका जा सके। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो दिस इज द रोल ऑफ द वैक्सीन। अब जो इसकी वैक्सीन है वो चूंकि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में 2 सीजन्स में अपीयर होता है, 2 किस्म की वैक्सीन बनी हुई है। इसी वास्ते कहते हैं कि अब आपको नहीं पता किस किस्म का इन्फ्लुएंजा आपको लगा है, तो आप साल में 2 वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो इसकी वैक्सीन का लगवाना खासतौर पे बूढ़े लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, हामला और जिन लोगों की शुगर है या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, ये कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं, गुर्दे की, जिगर की, वो जरूर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि जब एक तंदुरुस्त आदमी को इन्फ्लुएंजा होना और एक बीमार आदमी को इन्फ्लुएंजा होने में बहुत फर्क है। अच्छा, तो ये वैक्सीन दस्तयाब भी है? जी बिल्कुल दस्तयाब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में वैक्सीन? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बाज में है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान में दस्तयाब है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर फ्लू हो गया तो अब इसको कितना सीरियस लेना चाहिए? लाइक इसको प्रॉपरली करना चाहिए, जख्मी वगैरह पी के और सेल्फ मेडिकेशन करके इसको क्योर करने की कोशिश करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा मतलब है कि वो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना कीजिए प्लीज, क्योंकि ये गलतफहमी है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करके वो ठीक कर देंगे। एंटीबायोटिक्स का इसमें बिल्कुल कोई रोल नहीं है। अगर इन्फ्लुएंजा तशखीस हो गई है, सबसे पहले तो आप मुस्तनद डॉक्टर से उसकी तशखीस कंफर्म कराइए। उसके बाद ये जिस तरह मैंने आपको बताया, ये खुद ब खुद 7 से 10 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, उस दौरान आपने अपने आप को हाइड्रेटेड बहुत रखना है, यानी पानी खूब पीना है और आपने रेस्ट करना है, क्योंकि आपको कमजोरी बहुत हुई होगी, आपके गले में खराश होगी। उसके लिए आप कुछ ले सकती हैं। कोई खास खुराक वगैरह जो आप रिकमेंड करना चाहें? इसमें अपने आप की बस जितनी भी चीजों में फ्लूइड है ना, वो आपने लेना है। थोड़ा सा यखनी का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, दूध लेकिन का, उसके यखनी साथ का मेडिकेशन साथ साथ चलनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया इसकी मेडिकेशन को पैनाडोल, जब आपको बुखार हो आपने पैनाडोल इस्तेमाल करनी है और कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है जब तक डॉक्टर आपको ये ना बताए कि वाकई आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। अच्छा, अभी आपने एंटीबायोटिक्स का जिक्र किया, तो ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक जो है हाल ही में एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी, उसमें कहा गया था कि वो बहुत डेंजरस है। आप काइंडली ये बता दें कि ये कितना और किस कदर इफेक्ट करती हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल हुए हैं। जी, ये आप जनरली पूछ रही हैं या इन्फ्लुएंजा के पेशेंट के बारे में? इन्फ्लुएंजा के पेशेंट के बारे में भी बता दें। देखिए, ये 2 धारी तलवार है। अगर आप एंटीबायोटिक को प्रॉपर वक्त पे नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर के जो जरासीम हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, वो मजबूत हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो असर नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये चूंकि इन्फ्लुएंजा में ये वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब तक डॉक्टर ने आपको बताया कि वायरल के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसका फैसला हम नहीं कर सकते, डॉक्टर करेगा। ऑफ कोर्स उसने जाहिर है उसका तजुर्बा करेगा, लेकिन नॉर्मली इस यंग आदमियों को नहीं होता। हाँ, अगर जरूरत है एंटीबायोटिक्स की तो डॉक्टर बताएगा कि आपको इन्फ्लुएंजा के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया तो आप इस्तेमाल कीजिए, वरना उल्टा जरासीम मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल आपसे कहने सेल्फ मेडिकेशन का क्योंकि रुझान बहुत ज्यादा है और हमारे एक और मसला है कि मेडिकेशन मिल भी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी दुकान में जाएं आप, जो मांगे आपको मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि दायमी बीमारियों वाले जो मरीज हैं, जैसे दमा हो गया, डायबिटीज होगी, दिल और फेफड़ों की बीमारियां वगैरह, उनके लिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू कितना खतरनाक है? जी, उनके लिए उस आदमी से ज्यादा खतरनाक है जो तंदुरुस्त है। चुनांचे एक आम यंग आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं है, उससे ज्यादा हाई रिस्क पे वो लोग हैं जिनको आप दायमी बीमारी कह रहे हैं। उसमें हार्ट की बीमारियां आ जाती हैं, गुर्दे की बीमारियां आ जाती हैं, दमा आ जाता है, फेफड़ों की बीमारियां आ जाती हैं।
चुनांचे ऐसे लोग अपने आप को जरूर वैक्सीनेशन पहले से करवा लें ताकि सीजन में उन्हें इन्फ्लुएंजा का इफेक्ट ना हो, क्योंकि उनमें ये तोड़ फोड़ अंदर जाके ज्यादा करता है। और कितनी एडवर्स हो सकती है ये सिचुएशन? काफी एडवर्स हो सकती है, इवन लीडिंग टू डेथ। इस वास्ते इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम इसको नॉर्मली हमारी पब्लिक जो है वो इसको लाइटली लेती है कि नजला जुकाम है और जा रहे हैं और वो उसको एहतियात भी नहीं कर रहे और दूसरों को भी लगा रहे हैं और खुद भी एहतियात नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हाल ही में कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में बहुत मैसिव लेवल पे फ्लडिंग हुई, जिसकी वजह से बहुत लोग मुतासर हुए। तो सैलाब से मुतासरा इलाके जो हैं वहां पे अब सेहत की क्या सूरत हाल है और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सैलाब के एक तो सैलाब के असरात थे कि लोगों की जानें गईं। सैलाब के दौरान जो नुकसान हुआ जानी माली सर्विसेज का, उसके बाद अब सेकंड फेज जो है सैलाब अब गुजर गया। अब तकरीबन 80% सिंध में पानी रिग्रेस कर गया है और 95% बलूचिस्तान में कर गया है। सिर्फ 20% चंद गांवों में चंद शहरों में पानी है, 1-2 फुट खड़ा हुआ है। अब मलेरिया बहुत फैलने के चांसेस हैं। अब डेंगू फैलने के इन इलाकों में जहां सर्दी नहीं है और सैलाब का पानी खड़ा हुआ है वहां मलेरिया डेंगू, फिर जो पानी के जरिए अमराज फैलते हैं ना, ट्रांसमिट होते हैं, उनके फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस। तो ये सूरत हाल उभर के आ रही है। तो अब इन इलाकों पे हमें इन चीजों पे ज्यादा, और खासतौर पे वो लोग जो बेचारे अब घर को वापस जा चुके हैं, उनका हर चीज लुटपुट गई है, वो बहुत हमें उनकी मदद की जरूरत है। उनको साफ पानी पीने का नहीं है और मेल न्यूट्रिशन बच्चों में देखिए, कई लोग कई दिन हफ्तों और महीनों खुले आसमान के सामने पड़े रहे हैं, उनको खुराक नहीं मिली, तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए। तो इस वजह से बाकी बीमारियों के साथ साथ अगर किसी एक को भी ये हो गया तो उससे ये ट्रांसमिट होने के चांसेस इन्फ्लुएंजा के भी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पे मुझे ये बताइएगा कि आप इससे बचाव के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा एक ही पैगाम है, वो ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। क्योंकि इसका ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती सिवाय पैनाडोल के। बुनियादी जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं, मिसाल के तौर पे छींक साफ करके या खांसते वक्त हाथ जरूर रखें प्लीज। रुमाल या हैंकरचीफ या टिश्यू को डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करें कि किसी के हत्थे ना लग जाए। अपने हाथ बार बार धोएं आप, खासतौर पे जो इन्फ्लुएंजा के मरीज हैं। अगर एक घर में एक आदमी को हुआ है तो वक्ती तौर पे उसके बर्तन, उसका तौलिया, उसका वॉशरूम, उसकी चीजें अलहदा कर दें। सिर्फ 5-6 जैसे कोरोना के टाइम पे काफी तदबीर बताई गई थी, उनके ऊपर अमल करते हैं। और जिसको हुआ है वो अगर मास्क का इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हवा के जरिए, छींक के जरिए फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम कहते हैं, उसके जरिए फैलता है। तो आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं ये मामूली सी एहतियातें करके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक ये पैगाम और ये एहतियाती तदाबीर पहुंच गई होगी। थैंक यू।